सत्संग जीओ। पावन स्थान ते चल रही लड़ीवार कथा दी विचार आप जी दे सन्मुख रख सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का उच्चारण किया होया ये पावन शब्द जिस विच मेरे पातशाह जी बख्शिश करते ने, गुरसिखां मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे। गुरसिखां दे मन दे विच प्रीत है किदे वास्ते? हरि परमेश्वर परमात्मा दे नाम वास्ते। कल मैं कुछ व्याख्या तुहाडे सामने रखी, प्रेम की है, प्रेम किसनूं कहंदे ने। प्रेम मन की एक अवस्था का नाम है, शरीरक कर्म का नाम नहीं है। शरीरक कर्म करदियां होया मनुख थक जांदा है। जो थक जाता है तो फिर वो रुक जाता है। तुसी कोई भी काम करोगे थक जाओगे एक दिन। लंगर बनाएगा कितनी देर, शरीर थक जाएगा तो रुक जाएगा। कोई सेवा करदा पिया, झाड़ू मारदा है, पोचा लांदा है, लंगर बनांदा है, किसी तरह की भी सेवा करे बंदा थक जाएगा। पाठ करदा पिया मनुख थक जाएगा, कथा करदा पिया थक जाएगा, कीर्तन करदा पिया थक जाएगा, सिमरन करदा पिया थक जाएगा। शरीरक कोई भी कर्म करदियां होया मनुख ने थक जाना है। जो थक जाएगा वो रुक जाएगा और अक भी जाता है बंदा। लेकिन प्रेम एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसनूं करदियां होया मनुख कदी थकदा नहीं है। प्रेम कदी थकांदा नहीं, प्रेम कदी रुकांदा नहीं है। इस वास्ते जिहड़े भगत ने ना 24 घंटे रब की आराधना करते रहते हैं। क्यों? अंदर प्रेम है। महाराज ने इत्थे गुरसिख का जिक्र किया है कि गुरसिखां मन हर प्रीत है, हर नाम हर केरी राम राजे। दुनिया दे विच जितने भी संबंध ने ना वो भी प्रेम दे ही ने। अगर प्रेम ना होवे तो कोई संबंध टिकदा नहीं है साडा। जे प्रेम ना होवे, बिना प्रेम तो भावें खून का रिश्ता होवे वो ज़्यादा देर चलदा नहीं है। भरा भरा दे विच दुश्मनी हो जाती है, प्यो पुत्र दे विच दुश्मनी है, खून इक्को ही है उन्हां दा। औरंगजेब दा और शाहजहान दा खून इक्को ही सी, पर अपने पिता दा कतल कर दिता उसने। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे साहबजादे सन बाबा प्रिथी चंद जी। खून दोनों दा इक्को ही सी, पर बाबा प्रिथी चंद सारी जिंदगी वैर करते रहे ने। महाराज नूं कहना पिया कि काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप।
ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ ਹਿਤ ਭਰਾਤਾ, ਉਨ ਘਰ ਘਰ ਮੇਲਿਓ ਦੂਆ, ਕਿਸ ਹੀ ਬਾਦ ਘਾਟ ਕਿਸ ਹੀ ਤੇ ਸਗਰੇ ਲੜ ਲੜ ਮੂਆ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 2.5 ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਥੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਮੂਆ, ਪੰਡਿਤ ਭਇਆ ਨਾ ਕੋਏ, 2.5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ 3 ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੜਦਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਨੇ, ਤਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ,
एक प्रणाली, एक संबंध पिता तो चलता है। दूसरा संबंध चलता है साडा मां तो। मां है, फिर मां दी मां साडी नानी हो गई, उसकी मां पड़नानी हो गई, फिर मामे हो गए, मामियां हो गई, उन्हों दे बच्चे साडे भरा हो गए। ये दूसरी प्रणाली है। तीसरा साडा संबंध चलता है सौहरियां तो। पति दा पत्नी दे सौहरियां नाल संबंध चलता है, सस है, सौहरा है, साला है, साली है, इस तरह संबंध चलते हैं। पत्नी दा अपने पति तो चलता है, पति दा पिता जिहड़ा है वो सौहरा है, सस है, फिर दिओर ने, जेठ ने, इस तरह ये तीन प्रणालियां चलदियां जिन्हां दे नाल साडे खून दे संबंध जुड़ते हैं। लेकिन भाई गुरदास जी कहते हैं कि इन्हां तिन्नां ही प्रणालियां दे विच जे प्रेम ना होवे तो रिश्ता टुटदियां साडा 1 सैकंड लगता है, सिर्फ 1 सैकंड। बड़ा सुंदर कविता है भाई गुरदास जी का। भाई साहब कहते हैं, नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा, सजन कुटुंब सुत बांधो ना भ्राता है। भाई साहब ने पहला शब्द वरत्या नहीं। जे प्रेम ना होवे, नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा, सजन कुटुंब सुत बांधव ना भ्राता है। भाई साहब कहते ने ये जिहड़े पिता दे नाल साडे संबंध ने ना, पिता फिर उहदा पिता दादा पड़दादा चाचे ताए और जितने संबंध ने, अगर प्रेम ना होवे किसे काम दे नहीं आन। दूसरा भाई साहब कहते ने, माता जैसे नहीं ममसार, माता पर माता, वृद्ध माता, मामी मामो मासी मौसा, बिदद विख्याता है। माँ तो जिहड़े रिश्ते चलते ने, नानी है, पड़नानी है, फिर मासियां ने, मामे ने। भाई साहब कहते ने जे प्रेम ना होवे तो ये किसे काम दे नहीं हैं। तीसरा भाई साहब कहते ने कि नहीं ससुरार सास ससुर, सारो ओ सारी, नहीं ब्रतीसर जाचक ओ ना दाता है। असन बसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसे गुर सिख साध संगत को नाता है। भाई साहब कहते ने जिहड़े सौहरियां दे भी संबंध ने ना, सौहरा है, फिर साले सालियां ने, फिर उन्हां दियां अगों होर रिश्तेदारियां, पति पत्नी दा रिश्ता जे प्रेम ना होवे तो भाई साहब कहते ने रिश्तेदारियां किसे काम दियां नहीं होंदियां हन। असन बसन धन धाम काहू में ना देखियो। हुण जिहड़ी चौथी गल भाई साहब कर रहे ने ना, भाई साहब कहते ने एक तां खून दा रिश्ता प्रेम दे नाल चलदा, भावें खून दा रिश्ता है पर चलेगा वो भी प्रेम दे नाल। ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे नाल जो साडे गुरु ने, शब्द अवतार ने, सिख अपने गुरु दे नाल खून दा संबंध किवें जोड़ेगा। अकाल पुरख वाहिगुरु जिहदी असी प्राप्ति करनी है, जो साडा मकसद है, मंजिल है, उहदा ते कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं उसका। उहदे नाल असी संबंध किवें जोड़ांगे? भाई खून दे संबंध ते साडे जुड़ गए ने, ते रब दे नाल खून दा संबंध किवें जोड़ांगे? भाई साहब कहते ने कि असन बसन धन धाम काहू में ना देखियो। कोई ये ना समझ लवे कि मैं धन गुरु नूं अर्पण कर दिता है ते गुरु नाल मेरा संबंध जुड़ जाएगा। भाई साहब कहते ने नहीं जुड़ेगा। कोई आखे मैं इतने वस्त्र कीमती अर्पण कर दिते ने, सोना चांदी अर्पण कर दिता है,
मेरा गुरु दे नाल कोई संबंध जुड़ जाएगा, रिश्ता बन जाएगा। भाई साहब कहते ने नहीं बनेगा। रिश्ता कदों बनेगा? जदों साडे अंदर प्रेम होवेगा। ते गुरु दे नाल, परमात्मा दे नाल सिर्फ प्रेम दा रिश्ता चल सकदा है, होर कोई भी नहीं। अगर कोई प्रेम दे नाल एक कोडी गुरु नूं अर्पण कर देवे ना, तो भाई साहब कहते ने भावनी भगत पाए कोडी अगर भाग राखे, ताहे गुरु सर्ब निधान दान देत है। प्रेम दे नाल अगर कोई एक कौडी भी भेंट कर दवे ना, तो गुरु दे नाल उसका संबंध बन जाता है। सर्ब निधान दान देत है, सारे खजानियां दी बख्शिश कर देंदा है। ते जे प्रेम ना होवे तो फिर भावें लखां करोड़ां गुरु नूं अर्पण करी जाओ, कुछ नहीं बनना साडा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि प्रेम का संबंध जुड़ता है रब दे नाल। भाख्या भाओ अपार, भाख्या भाषा, भाओ प्रेम। रब दे नाल साडा संबंध प्रेम का जुड़ सकता है। चलो मैं एक गल होर कह के तो फिर आपां शब्द भी मुकम्मल करना है अज, क्योंकि अज दास दी आखिरी हाज़री है तुहाडे चरनां दे विच। अकबर ने एक दिन बीरबल नूं पुछ लिया भी ये ग्रंथां दे विच ऋषि मुनियां ने, विद्वानां ने प्रेम दी बड़ी गल कीती है, आखिर ये प्रेम है की चीज़? प्रेम किस नूं कहंदे ने? बीरबल कहंदा भी महाराज बादशाह सलामत, प्रेम अकथ है, कहा नहीं जा सकता। मैं शब्दां दे नाल प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकता। हाँ, कदी कोई ऐसी घटना मेरे सामने आई तो फिर दसांगा कि प्रेम किस नूं कहंदे ने, पर मैं अखरां दे नाल तुहानूं दस नहीं सकता भी प्रेम की चीज़ है। कदी कोई ऐसी घटना मेरे सामने आ गई तो फिर दसांगा कि बादशाह सलामत प्रेम इस नूं कहंदे ने। शिकार खेडण गए सन एक दिन अकबर ते नाल बीरबल भी सी। घोड़े दे उत्ते सवार अकबर किसे हीरन दे पिछे बड़ी दूर निकल गया। वो हीरन ते हथ आया ना, थक गया बड़ा। दूर एक वड्डा दरखत नज़र आया तो इसकी नज़र पै गई। मन भी सोचिया भी चलो थोड़ी देर आराम कर लवां मैं। शिकार तो कोई मिलिया नहीं है। अकबर उस दरखत की तरफ जांदा पिया ते की देखदा है कि दो हीरन लेटे हुए ने दरखत दे थल्ले। सोचदा भी हुण सुते होयां नूं ते मारांगा नहीं, जदों उठणगे तो फिर मारांगा। ये तो छां भी मिल गई तो शिकार भी मिल गया। अकबर जूं जूं नेड़े जांदा पिया, हीरन दे विच कोई हलचल नहीं हुई। हालांकि हीरन बड़ा चुस्त जानवर है, थोड़ी जी भी आवाज़ सुन लवे तो सुचेत हो जाता है, दौड़ जाता है उठ के। पर ये हीरन सुते हुए ने, घोड़े की आवाज़ सुन के भी उठे नहीं। बादशाह अकबर हीरन दे बिल्कुल कोल पहुँच गया तो दोनों सुते हुए ने। पिछों चल के तो बीरबल भी आ गया। एक हीरन इस पासे पिया होया ते एक हीरन इस पासे पिया होया। ते अकबर देखदा भी इन्हां दे शरीर दे उत्ते कोई जख्म भी नहीं, कोई तीर नहीं लगा, कोई गोली नहीं लगी। लगदा दोनों मर गए ने ते हुणे ही मरे ने, ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, सजरे ही ने। पर सोचदा भी ये मरे क्यों हन। बीरबल जदों आया ते अकबर कहंदे भी सिपा न देखा हमने कहीं न लागो बाण, बीरबल शंका भई क्यों इन त्यागे प्राण। अकबर कहंदे भी बीरबल इन्हां नूं कोई तीर नहीं लगा,
कोई बंदूक दी गोली नहीं लगी, दोनों ही मरे हुए ने। आखिर ये मरे क्यों ने? हुण बीरबल बड़ा सियाणा सी, उसने वेख्या भी एक हिरन इस पासे पिया होया ते एक हिरन दूजे पासे, विचकार एक छोटा जिहा बर्तन है ते दो कोटो दे विच पानी है, बहुत थोड़ा पानी। बीरबल गल नूं समझदिया होया कहंदा बादशाह सलामत, तुसीं पुछिया सी ना कि प्रेम किस नूं कहंदे ने, अज मैं तुहानूं दस सकना कि प्रेम की चीज़ है। अकबर कहंदा हीरन वेख के तू की दसेगा? कहंदा नहीं बादशाह सलामत, अज मैनू प्रेम की व्याख्या मिल गई है, मैं तुहानूं दस सकना प्रेम किस नूं कहंदे ने। ते बड़े ध्यान नाल तुसीं सुनना है। बीरबल कहंदा है कि जल थोड़ा त्रिखा घणी, प्रीत महाबलवान, तू पी तू पी, इस बिद त्यागे प्राण। कहंदे बादशाह सलामत, इन्हां दोनों हिरनां दे विच प्रेम बड़ा सी है। हिरन दा जोड़ा है, पति पत्नी ने दोनों। प्यास बड़ी लगी हुई सी, दोनों नूं दूरों दौड़ के आए होने ने। भांडे दे विच पानी बहुत थोड़ा है। एक ने आख्या तू पी लै, तेरी जान बच जाएगी। दूजे ने आख्या तू पी लै, तेरी जान बच जाएगी। कहंदा बादशाह सलामत, ये दोनों एक दूजे दे उत्तों कुर्बान हो गए ने, इस नूं प्रेम कहंदे ने। जल थोड़ा त्रिखा घणी, प्रीत महाबलवान, प्रीत बहुत वड्डी है। तू पी, इस बिद त्यागे प्राण। कहंदा बादशाह सलामत, अगर एक पी लैंदा तो एक ने बच जाना सी ते प्रीत रहनी नहीं सी। ये दोनों एक दूजे दे उत्तों कुर्बान हो गए ने। बादशाह सलामत, किसी दे नाल प्रीत होवे ना, बंदा उस तो अपनी जान निछावर कर सकता है। इनू प्रेम कहंदे ने। बाणी भी आखदी है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर दर तली गली मेरी आवो, एक मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। जिहड़े चमकौर दी गली दे विच सिख शहीद हो गए सन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोलों की लैना सी उन्हां ने? प्रेम सी बस अपने गुरु दे नाल। कुर्बान हो गए सारे। 10 लाख दी फौज, 40 सिंह कुर्बान हो गए। पता सी सामने मौत है, पर अपने गुरु दे उत्तों अपनी जान निछावर कर दी। इस नूं कहंदे ने ये प्रेम है। मैं तां अर्ज करदा पिया कि साडा गुरु दे नाल किधरे प्रेम बन जाए। जिस दिन अंदर प्रेम पैदा हो गया ना, समझ लेना कि गुरु दे नाल साडा संबंध जुड़ गया है। वो कोई पंजाबी सुन के साडे नाल संबंध नहीं जोड़दा, वो कोई गुजराती सुन के नहीं संबंध जोड़दा, वो कोई अंग्रेजी सुन के नहीं संबंध जोड़दा। इक्को ही भाषा है परमात्मा दी, सिर्फ प्रेम। प्रेम दे नाल कोई कुछ भी बोले, वो रब उस दे नाल संबंध जोड़ लैंदा है। हुण महाराज कहंदे ने प्रेम तां होवे, पर किहदे विच गुर सिख, जो गुरु दा सिख होवे। साडे वर्गे सिख ना होण भी मत्था टेकदे होण गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं ते होर पता नहीं कित्थे कित्थे धक्के खांदे होण। परिक्रमा करन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी, बाणी पढ़न गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी। ऐसे सिख नहीं चाहिए। तरे केस पाहुल बिना पेखी मूर्ख सिख, तिसको दर्शन नाही मेरा पापी त्यागे बिख। महाराज कहते ने केवल केस रखे हुए ने, अमृत छकिया नहीं, बाकी ककार है नहीं ने। किहड़ी गल दा सिख है? आखिर सिख तो वही है ना जो गुरु का हुक्म मनदा वे, जो गुरु दे दसे हुए मार्ग दे उत्ते चलदा वे। सिख वो जो सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मनदा है। असी
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪੈਣ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਾਧ ਆ ਜਾਣੇ, ਨਰਾਤੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੂਹੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬੱਪੜੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਾਧ ਹੈ? ਤੇ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਈ, ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਊਏ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖਿੱਧ ਪੰਛੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਊਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਊਏ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ ਖਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚੁੰਝ ਹਰ ਵਕਤ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹੇ ਮੇਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ? ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ,
सानू कहण दी लोड़ नहीं सी पैनी, अमृत छको, गुरु वाले बनो, बाणी पढ़ो, सत्संग करो। सानू कहण दी लोड़ ही ना पैंदी जे हुक्म मन लिया हुंदा ते। पर असीं मंनदे नहीं हाँ। महाराज कहंदे ने जिहड़ा गुरु दी सेवा करदा है उहदी सारी भुख लै जांदी है। ਉਹਦੇ अंदर ਇੱਕੋ ही भुख रह जाती है, सिर्फ अपने गुरु की प्राप्ति करना, बस होर कोई नहीं। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। सारिया ही भुखा उसदियां चलियां जांदियां हन। गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी। जिहड़ा गुरसिख है उहदी अपनी भुख ते चली जाती है, फिर जब उसके अंदर नाम का प्रकाश होंदा है ना, उहदे पिछे पिछे चल के हज़ारां सिख फिर अपनी भुख नूं मिटांदे हन। महाराज दी बाणी कहंदी है ना, तिन की बरकत खाए असंख करोड़। उन्हां दे अंदर नाम का खजाना इतना होंदा है कि अपनी ते भुख मिट ही जाती है। वो जितना वंडदे ने, हज़ारां लखां लोग उन्हां गुरमुखां दी सिखां दी संगत करके ते अपनी भुख नूं दूर करते हैं। एक ऐसा खजाना है, खावे खर्चे रल मिल भाई, टोट न आवे वध दो जाई। ए थोड़े समय पिछे दा मैं एक प्रमाण दे दियां टूक मात्र। मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, जिन्हां ने पहले नाम की कमाई आप की थी और हज़ारां ही संगतां ने उन्हां कोलों फिर लाभ प्राप्त किया। और तुसी हैरान हो जाओगे, अज 17-18 साल हो गए ने उन्हां नूं संसार तो गया होया, पर उन्हां दियां कथावां सुन के अज भी जिहड़े सिख ने ना, वो मन करके गुरु दे सिख बन जाते हैं। अज भी ये गुरसिख की बरकत है। इत्थों पता चलता है कि उन्होंने कितनी को नाम की कमाई की होनी है। तो महाराज कहते ने पिछे होर खाए गनेरी। पिछे जिहड़े उन्हां दे मार्ग ते चलदे ना, वो भी अपनी भुख नूं मिटांदे हन। अगे सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, जन नानक हर पुन बीजिया, फिर टोट न आवे हर पुन केरी। जिन्हें अपने इस हिरदे रूपी धरती दे विच पुन दे बीज बीजे हन, महाराज कहते हैं उन्हां दे विच फिर कदी टोट नहीं आती है। फिर टोट न आवे वध दो जाई, वो फिर कदी टोट नहीं आती। हमेशा वो खजाना जिहड़ा है वो वधदा जांदा है। गुरसिखा मन वाधाइयां, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे। उन्हां गुरसिखां नूं महाराज कहंदे ने असीं वधाइयां दिंदे हां। किनू? जिसने अपने गुरु दे दर्शन कर लए हन। हुण दर्शन ते तुसीं भी करदे पे हो, मैं भी करदा पिया, पोथी मेरे सामने खुली हुई है। क्या ये दर्शन गुरु ग्रंथ साहब का यही दर्शन है? इसे नूं दर्शन कहांगे? तुसीं सारे दर्शन करदे पे हो। कई लोग ताबियां पहुँच के ना रुमाला चुक के ते फिर थल्लों दर्शन करते ने उहदे वेखण गयो। तो मैं पूछदा होना भी तुसी की वेख्या रुमाला चुक के? की नज़र आएगा सानू? कागज़ नज़र आउणगे भी केड़ा लग्या होया वे, स्याही नज़र आएगी भी केड़ी लगी हुई है। फुल बूटे तुसी देख सकते हो केड़े बने हुए ने, केड़ा अंग खोलिया होया तुसी इतना भी देख सकते हो। रुमाले देख लोगे, पीड़ा साहब देख लोगे, पालकी देख लोगे। क्या वाकई ये गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन है? क्या यही दर्शन है गुरु ग्रंथ साहब का? गुरबाणी व्याख्या करती है, महाराज कहते ने सतगुर नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार, डिठे मुकत न होवई, जिचर शब्द न करे विचार। वेखण दे नाल महाराज कहते ने मुक्ति नहीं होनी है,
सारी जिंदगी गुरु ग्रंथ साहब नूं वेखी जाओ, मैनू नहीं लगता भी वह बंदा मुकत हो सकता है जां कुछ प्राप्त कर सकता है। समुंदर के किनारे असी बह जाइए, मत्था टेकीए, उन्होंने हथ जोड़ीए, क्या उहदे विचों कुछ प्राप्त होंदा है सानू? ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते महासमुंदर ने, अथाह समुंदर। जिवें समुंदर दे विच टुब्बी लाया, गहराई दे विच जाण तो बाद सानू मोतियां दी प्राप्त होंदी है, सुच्चे मोती प्राप्त होंदे ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जाण दे नाल। विच किवें जाना? शब्द दी विचार करनी, शब्द नूं पढ़ना, फिर शब्द दी विचार करनी और उस शब्द नूं हिरदे विच वसाना। असल दे विच इह गुरु ग्रंथ साहब दा दर्शन है। बाहरों वेखण नाल नहीं, गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं भी लोकी बाहरों वेखदे सन, पर उन्होंने तो पत्थर मारे। कोई आखे पूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कईयां ने धक्के मार के पिंडों बाहर कढ़ दिता है, किसी ने पत्थर मारे ने, किसी ने पिंड विच वड़न नहीं दिता है, कईयां ने बोल कबोल बोले ने। पर जिन्हां ने गुरु नानक नूं अंदरों वेखिया ना, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास न परिया। भाई साहब भाई नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे अनिन्न भगत सन। प्रेम बड़ा सी उन्हां दे अंदर। सिੱਖੀ दी जो व्याख्या भाई गुरदास जी ने ते भाई नंद लाल जी ने कर दिती है ना, साडे लोग तो हुण पढ़दे ही नहीं हैं इन्हां विद्वानां नूं। बैठे सन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते भाई नंद लाल जी चरनां विच बैठे हैं। ते महाराज इतनी खुशी विच आए, इतने प्रेम दे विच आए, कहन लगे नंद लाल साडा जी करदा है कि तू अज कुछ मंग लै। साडा जी करदा है तू कुछ मंग लै। वेखो असी गुरु कोलों मंगदे पे हां, ऐसा कोई बंदा नहीं होना जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे अगों आके कुछ मंगदा ना होवे। मैं भी तुहाडे विच शामिल हां, पर गुरु सानू नहीं देंदा। मंग मंग के थक जाने असी, नहीं देंदा। लेकिन भाई गुरु नंद लाल जी नू गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप कह रहे ने भी तू कुछ मंग। आखिर भाई नंद लाल विच कोई गल होनी है ऐसी कि गुरु नू कहना पिया भी मेरा जी करदा पिया तू कुछ मंग लै। ते भाई साहब कहते ने महाराज जदों तेरे चरनां विच मैं आउण लगा सन, तेरी शोभा सुन के ते मेरे अंदर बड़े ख्यालात चलदे सन। मैं सोचदा हुंदा सां जे गुरु मेरे ते प्रसन्न हो गया ना तुठा, तो मैं कहांगा मैनू धन दे दिओ, दौलत दे दिओ, जमीन दे दिओ, जायदाद दे दिओ, मान सत्कार दे दिओ। महाराज बड़ियां मेरे अंदर मंगां चलदियां सन, पर जिस वक्त मैं तुहाडा दर्शन कीता तो भाई नंद लाल जी कहंदे ने महाराज हुण कुछ मंगण नूं दिल ही नहीं करदा मेरा, मैं की मंगा। तो महाराज ने आख्या भी असी हुण कह बैठे हाँ कुछ ते मंग लैना। असी कहा तैनूं साडे वास्ते कुछ मंग लै। ते भाई साहब कहंदे ने जे तुठे हो तो एक दात मेरी चोली विच पा दिओ। कि भाई साहब कहंदे ने दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगजने इसरार बख्श। बड़ी लंबी गज़ल है पर क्योंकि समा हो जाना है, मैं पहली पंक्ति दे अर्थ तुहाडे सामने रख देना। भाई साहब कहंदे ने दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, मेरिया इन्हां अखां नूं ऐसी दात बख्शिश कर कि हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैं तेरा दर्शन कर सकां। ते कोल खड़े सन बहुत सारे सिख, उन्होंने आख्या भी भाई साहब क्यों झूठ बोलते पे हो, जिथों तक सानू पता है सब तो नेड़े तुसी हो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे, सब तो नेड़े।
क्या तुहाडियां अखां खराब हो गईयां ने, दिखाई नहीं देंदे पे गुरु? रोज़ तां दर्शन करदे हो, असीसां तुहानूं मिलदियां ने, ते तुसीं आखदे पे हो भी अखां नूं ऐसी ताकत मिल जावे कि गुरु का दर्शन हो जावे। भाई साहब कहते ने कि मेरिया अखां गुरु गोबिंद सिंह नूं सिर्फ बाहरों वेखदियां पईयां ने, सिर्फ बाहरों। मैं वेखना चाहना कि गुरु गोबिंद सिंह अंदरों की है, अंदरों की। असी बाहरों ही वेख्या, असी वेख्या बड़ी सोहनी दस्तार सजांदे ने, कलगी लांदे ने, हत्थ विच किरपान पकड़ी, सोहना चोला पाया, सोने दे सिंघासन ते बैठे, बस इतना ही वेखने आ ना। पर अंदरों गुरु की है। एक कवि होया जमाल हुसैन, कहंदा मेरी अख नाल वेखो गुरु गोबिंद सिंह नूं, तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, दीदारे खुदा गर नहीं जिसने देखा, गोबिंद सिंह को देखो वही हू बहू है। कहंदा मेरी अख नाल वेखो, जे इस धरती दे उत्ते कोई खुदा दा रूप है ते ओ गुरु गोबिंद सिंह है, कोई होर नहीं है। असी बाहरों वेख्या है। महाराज कहंदे ने कि जिन्हां ने दर्शन कीता असी उन्हां नूं बधाई देंदे हां। कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखा मन मिठा। जद कोई गुरु दी परमात्मा दी गल सुणांदा है ना, क्योंकि गुरु दे सिख दे हिरदे विच प्रेम होंदा है, उहदे कन्नां दे विच जिवें मिठास घुल जांदी है, उहनूं फिर बड़ा आनंद प्राप्त होंदा है। हर दरगे गुर सिख पैनाईए, जिन्ना मेरा सतगुरु टुठा। पर यह प्रेम तां प्राप्त होंदा है जदों गुरु दी साडे उत्ते किरपा हो जांदी है, प्रसन्नता हो जांदी। प्रसन्नता कदों होंदी है? जदों साडे हिरदे दे विच प्रेम होंदा है। जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा। जिहदे उत्ते गुरु दी किरपा हो जाए, जिहदे मन दे विच प्रेम हो जावे, वो फिर हरि परमात्मा का ही रूप हो जाता है। क्यों? परमात्मा प्रेम रूप है, जिहदे हिरदे विच प्रेम प्रगट हो गया, वो भी फिर रब का ही रूप हो जाता है। जैसे कबीर कहंदे ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। फिर कोई पहचान नहीं सकता कबीर कौन है ते रब कौन है, दोनों एक मिक हो जाते हैं। भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक सज्जणा दा और फतेह टीवी परिवार दा, जिहड़े लाइव दे राही घर घर तक ये गुरु का उपदेश पहुँचा रहे हैं। सतगुरु आप सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला बख्शिश करन, मेरे ते भी किरपा करन। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद।